I am Punyasha Khekare, and I'll be introducing Professor Ganesh Ingmire today. So he is a renowned intellectual property enthusiast, awarded the National Intellectual Property Awards in 2015 and 2016 by India's Ministry of Commerce. His academic achievements include an LLM from the UK, an LLB from ILS Law College, Pune, and science degree in chemistry and Masters of Philosophy in Economics from the University of Pune. Professor Ganesh has undergone professional training at notable institutions like the Japan Patent Office, Indian Institute of Foreign Trade, IIT Kanpur, and NISCAIR. Since 2002, he has been instrumental in supporting industries with IPR registration and commercialization, alongside teaching as a visiting faculty at top Indian institutes, including IITs and national law schools. Now I request Mr. Ravi Moore, sir, to felicitate our guest. Now I request him to take over the dais. A very good evening, one and all. I'm really thankful to organizer for an opportunity to discuss very important law, but unfortunately neglected law to maximum extent in India. Shall I wait for 5 minutes to finish your, you can please finish your feedback, whatever you people are doing. I'll wait 2 minutes, just finish, then we can start the discussion. Is that all right? आप कुछ लिख रहे थे मेरे ख्याल से, वो ख़त्म कर दीजिएगा, फिर हम लोग शुरुआत कर लेंगे. क्या करें? हो गया? So, let's talk about the most important law for India. I repeat my statement, but unfortunately most neglected law from India. The law pertaining to intellectual property right, more specific, communities' intellectual property right, called geographical indication. This law will help to build real India, developed India, and you and me, we have to contribute through this law to our beloved nation, and hence I'm here. So I am really again thankful to the organizer for giving me this opportunity to interact with you all for the most important topic. मैं ये कर सकता हूँ? मुझे दे दो. Okay, friends, you all are from the legal background, if I'm not wrong. Now, you know various branches of law, commercial law, civil law, criminal law, cyber law. One of them is intellectual property law. Actually, there is no as such intellectual property law. Intellectual property consists of various forms. I'm going to talk about that, and I'll be more focused on geographical indication and further with very specific topic called cultural entrepreneurship and the opportunities available to you all through this law, where you can contribute and give justice to your own profession. And that's why I'm here. So these are the different laws. Here is the category which you know very well. Patent, you know very well. Trademark, industrial design, copyright. Is there any from this class who are not familiar with the intellectual property right? You are aware. Oh, some of you. Okay. Let me introduce very precisely into 2 to 3 lines about the intellectual property right. The property which is created by intellect is intellectual property. So patent, if you invented something new, then you will get the patent. Where you are applying your mind, your intellect, and you are creating, you are developing, you are inventing something new, that is patent, that is your intellectual property. And the rights granted by law, you will get monopoly. I will not manufacture this device invented by you. You got the patent. So you got an exclusive right, monopoly right. That's what
intellectual property right, one of the form. So you came with certain book, or maybe an article, or maybe a painting. That is your creation. And again, the rights which are granted to you is a copyright. So that is also another form of intellectual property right. The third one is a trademark. Tata, you cannot run your business with the name Tata. That is monopoly, that is exclusive rights of Tata. Those are different forms of intellectual property rights, including industrial design. The best example is your Nano. So this is about intellectual property right, and intellectual property right is not new subjects to all of us. I repeat my statement. This is not new subjects to all of us. Rather, our day starts with someone's intellectual property, our day ends with someone's intellectual property. We are paying huge amount for someone's intellectual property, right? But we are not aware of the fact that we are paying for someone's intellectual property right. How our day start with our intellectual property right? Toothpaste. Colgate, Pepsodent, Patanjali, Vithoba. If I offer you a toothpaste without any name, will you use that? If I further say, okay, this is my toothpaste, no name, further I'll give you 10 rupees, please use this. Will you use this? What does it mean? Why? Sorry? Yes, tell me, please. Someone say brand. This is a very common phenomenon. Can you tell me any law pertaining to brand? There is no law pertaining to brand. There is law pertaining to trademark which you can protect as a brand. Got it? So that Patanjali, Vithoba, Colgate, Pepsodent, those are, you may say brand, but they are protected as a trademark first. So that is intellectual property. So your day starts with someone's intellectual property. Your day ends with someone's intellectual property. After an hectic schedule, you need a comfort sleep and you select again a good mattresses. Correct? So your day ends with. Now, third most important questions, or rather statement I use today, that we are paying huge amount for someone's intellectual property right. I can support my statement with two examples. One, your laptop where you can see Microsoft. When you open your device called a laptop, you will find 4 windows. And there is a line behind that window copyrighted at Microsoft 1986-2000. What does it mean? They got the copyright for Windows. It may be your Excel, it may be your PowerPoint presentation, it may be your Windows 11, Windows 10, whatever it may be, where you have paid the license fees to the Microsoft. Remember, you have paid license fee to Microsoft. Correct? So, someone may have paid, say, 5,000 rupees. When you might have purchased that laptop, there is a separate or inclusive license fee, that is 5,000. He must have paid 2,000, whatever it may be. But for the same copy, that is copyrighted. So just imagine we have 100 participants right now here. How much we have paid to the Microsoft for their intellectual property? Minimum average 2,000 multiply by 100. कितना भारत संपन्न है, हम लोग अमेरिका को चला रहे हैं. Correct? ये क्या है? Just imagine, calculate. I'm just giving you a homework. 2,000 multiplied by 100 from this class. There may be 100,000 class like this. They might have purchased the Microsoft. Same. अगर नहीं किया तो वो violation of law. जो lawyers को opportunity देता है कि fight करो case. What we can call infringe copy in law के language में, या फिर typical known language में pirated copy.
Got it or not? Correct? So, एक example, how big we are, how we are intellectual property के लिए कैसे पैसे भरते हैं हम लोग. This is one example. Second, at micro level, you all are using mobile. Am I right? ऐसा कोई है कि यहाँ पे नहीं जो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा है क्या? चाय पिए ना? कौन सी पी है? दार्जिलिंग की, आसाम टी, नागपुर वाली चाय. हैव यू सीन दैट नेम? दार्जिलिंग, आसाम वगैरह, वो तो जिया है भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. एनीवे, तो माइक्रो लेवल के ऊपर आप सब लोग मोबाइल जो इस्तेमाल करते हो, उसमें एक सो कॉल्ड ऐप है, उसको टेक्स्ट मैसेज कहते हैं. पता है? जैसे आज लोहड़ी का आपने किसी को तो मैसेज भेजा होगा कि लोहड़ी के पावन पर्व पर आपको शुभकामनाएं, या किसी का तो आया होगा ना, आया है ना, आया होगा. कल करोगे, संक्रांति का करोगे तो करोगे ना. तो पता है वो क्या है? वो टेक्स्ट मैसेज टेक्नोलॉजी इज पेटेंटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास. और शुरू के जमाने में 10-15 साल पहले टेक्स्ट मैसेज पे मर्यादा थी कि 100 टेक्स्ट मैसेज के लिए 30 रुपीज आपको देना पड़ता था. जिन्होंने 10-15 साल पहले अगर इस्तेमाल किया तो वो कहां पे जाते थे? 140 करोड़ भारत की जनता है, 50% जनता आज चलो पकड़ के चलो मोबाइल इस्तेमाल करती है. किसी के पास 20 to 30% इंटरनेट, व्हाट्सएप वगैरह रहेगा, लेकिन 50% तो भी 70 करोड़ की जनता टेक्स्ट मैसेज इस्तेमाल करती है, जो किसी का पेटेंट है और उसके लिए रॉयल्टी भरते हैं हम लोग. पकड़ के चलना, मैंने क्या अभी 2 या 5 रुपया, 1 रुपया भी पकड़ के चलना, 50 पैसे पकड़ के चलना, तो भी कितना है? इंपॉर्टेंस अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जानना है तो ये माइक्रो लेवल का एग्जांपल जरूर जान लीजिएगा कि कितना पैसा हम लोग, हमारे लिए वो एक चाय के बराबर है. समझो कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है टेक्स्ट मैसेज, एंड फॉर हिम द रॉयल्टी इज 5 रुपीज फॉर यूजिंग द मोबाइल एंड ऑल. ही सेड फाइन, फॉर मी इट्स 1 चाय. बट कितने करोड़ का चाय के रुपए हम लोग यूएस को दे रहे हैं उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए. दैट इज फ्रॉम एकेडमिक सेक्टर, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास. Got it or not? Correct? तो ये है important. So I supported my statement. We are paying huge amount for someone's intellectual property right, but we are not aware of the fact. Correct? आपको ही पता नहीं. ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, बट मैंने जानबूझ के 2 दे दी है. एक माइक्रोसॉफ्ट का जहां पे हजारों रुपया दे रहे हैं आप किसको? अमेरिकन कंपनी को. जहां पे आप 2 रुपया दे रहे हो किसको? अमेरिकन एकेडमिक सेक्टर को. क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के पास वो नहीं है, हमने नहीं किया, वरना हमारे पास रह जाते थे. गॉट इट ना? और आप उसका वायलेशन भी नहीं कर सकते हो, लॉ है. गॉट इट और नॉट? दैट्स व्हाई this is very important. In terms of percentage also, I can give you. Someone said about the brand. Brand. You all must have purchased Parker pen. Parker purchase किया होगा at least. कितना है minimum price उसका? 100 rupees? चलो, remove the name Parker from that Parker pen. How much will you pay for that? 90 rupees for what? 90 rupees for what? What? Again say brand, whether brand. Then trademark, intellectual property right. So value of intellectual property in terms of percentage क्या होगी ये ध्यान लीजिएगा. Got it or not? So 2-4 बच्चे जो आईपीआर के पर्सपेक्टिव से जानना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने 3-4 मिनट में आईपीआर को समराइज किया है, वरना आईपीआर के ऊपर दिन भर बात करें तो भी कम है.
So that's why IPR is not a new subject. IPR is part of our day-to-day life. IPR is very, very important at global level, but unfortunately not reach at right platform. I was there in Japan in 2009. उस वक्त गवर्नमेंट डेपुटेशन की तरफ से था, तो वहां पे 7वीं कक्षा से पेटेंट का सेपरेट बुक था, ट्रेडमार्क का सेपरेट बुक था, और हमारे यहाँ पे जो लॉ आईपीआर को प्रोटेक्ट करने वाले लॉयर्स के पास भी आजकल ऑप्शनल सब्जेक्ट ही है आईपीआर. बट फॉर्चुनेटली विधि आपके पास ये सब्जेक्ट ले रहे हैं दूसरे एंगल से. मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपको समझाना. आई एम नॉट टॉकिंग. सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द पेटेंट व्हिच आर ग्रांटेड ऑन. सेक्शन 7 इज टॉक अबाउट द फॉर्म्स व्हिच इज रिक्वायर्ड. सेक्शन टॉक्स 8 अबाउट टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द पेटेंट वेयर एक्सक्लूसिव राइट. No. One line, this is exclusive. One line, this is value. One line, this is this. How it is important to the nation, how it is important to the community, and what you have to do. Got it? Clear? Now, this is different forms. I am not going to talk much about the R, that is registered trademark, TM, that is applied trademark, different examples, law, provisions. I have already talked about this. Here, I said about the IPR, our day start with IPR, our day ends with IPR, we are paying for IPR. Even for single device, you will find at least 4 IPRs. Take an example of your television, Sony, Bosch, whatever it may be. उसका नाम प्रोटेक्टेड एज अ ट्रेडमार्क. उसका डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन. पहले जिन्होंने कभी पहले टेलीविजन देखे होंगे तो बड़े बड़े साइज के थे और अंदर वो कांच के बल्ब जैसा अंदर अरेंजमेंट रहता था. अभी प्रिसाइज वॉल में लगा दो. क्या है वो? टेक्नोलॉजिकल इनहांसमेंट, दैट इज पेटेंट. उसके लिए लिफलेट बनाया गया, फ्लो चार्ट बनाया गया, ब्राउशर्स बनाए गए. वो क्या है? कॉपीराइट. करेक्ट. तो यह 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ही डिवाइस में, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे आपका यू कैन से ऑफ योर लैपटॉप एज वेल, एनी एग्जांपल, और योर मोबाइल. इट मे बी एप्पल, इट मे बी सैमसंग, इट मे बी ओप्पो. गॉट इट और नॉट? इट मे बी एन नंबर ऑफ नॉवेल्टीज लाइक से मेरा कैमरा इतना मेगापिक्सल का है, इतना फोल्ड होता है, ये क्या है? दीज आर द फीचर्स which are developed by them, which are their monopoly. Once that become a generic, then that's. अगर आपको लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब डिटेल में देखना है तो आप अलग अलग केस लॉ स्टडी करो. एप्पल वर्सेस सैमसंग, मेनी केसेस वेयर यू विल अंडरस्टैंड कि एक डिवाइस में कितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी छुपी है. मतलब वो मोबाइल की कीमत अगर 10 रुपया है तो 7 रुपया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके जाता है कम से कम. गॉट इट और नॉट? एंड दैट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. नाउ आई एम कमिंग टू माय एरिया, that is geographical indication, which is one of the important intellectual property right. GI is our forefathers' patent. GI is community's intellectual property right. GI देश की धरोहर है. GI देश की संस्कृति है. GI मिट्टी से निर्माण अपनी एक कला है. आई एम कमिंग टू दैट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, I again go back to my statement that globally IPR is important. Why? Because India is member of WTO. India is member of WIPO, World Intellectual Property Organization.
and you all might have studied United Nations. So WIPO is a specialized agency of United Nations. And our volunteer introduced me that I have attended not six, but I have attended 7 ministerial conferences of WTO at different parts. Cancun, Hong Kong, Geneva. And next month from 23rd Feb, I will be there in Abu Dhabi to attend the 13वीं मंत्री परिषद को मैं जा रहा हूं, और उसमें geographical indication is one of the issue for negotiation, and you people are fortunate enough to understand the geographical indication today. हमारी डिमांड है, let me summarize the issue. हमारी डिमांड है, our volunteer also introduced that my 3 position papers are there on WTO's website, which you can easily search and get, where I have demanded Indian GI to get an international market. Unfortunately, that is not so far accepted, but we are pushing that subject. मैं थोड़ी देर में एक तरफ आ रहा हूं, बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं, थोड़ी देर में आने वाला हूं. पहले सवाल ही पूछता हूं कि 23rd Feb को जब हम लोग जाने वाले, you are requested to see the international scenario. What is WTO? What is TRIPS agreement? Some of you might have studied the TRIPS agreement. TRIPS का full form है Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, which is there in WTO regime now. और उसके वजह से हम लोगों ने अपने लॉज बदल दिए हैं. You know, main 2 sources of law जो भारत में आते हैं, या तो फिर पार्लियामेंट पासेस द लॉ, या फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट बना देती है प्रेसिडेंट सिस्टम. लेकिन थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स जो होगा वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहने वाला है, वो है इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स. चाहे फिर वो WTO हो, चाहे फिर WIPO हो. और आप शायद पढ़ते होंगे कि डेली हम लोग ये बायलैटरल, ये रीजनल, ये एग्रीमेंट करते जा रहे हैं. उसके बेसिकली इम्पैक्ट भारत के ऊपर होने वाले हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दी मल्टीलैटरल ट्रेड रिजिम वेयर वी आर कैन. यहां पे खाली है 7, 8, 9 चीज. समवन वांटेड टू सिट देन प्लीज. आई थिंक मुझे लगा कोई बैठने के लिए ढूंढ रहे हैं और यहां पे. एनीवे, सो WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट, आई सेड थर्ड सोर्स ऑफ लॉ, और इस वजह से हमारे लॉज आए हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू टू सी द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, फर्दर पेटेंट अमेंडमेंट 2005. And the most important is your Geographical Indication Act we enacted because of the TRIPS agreement. भारत में ये लॉ, मैंने कहा ना सोर्स, तो ये क्यों आ गए? पहले तो था क्या? नहीं थे, अभी है. क्यों है? बिकॉज WTO, बिकॉज TRIPS agreement, बिकॉज India's commitment, and then we have enacted that. Correct? So ये now question, I'm going back to my concern about the next month's ministerial conference supposed to be held at Abu Dhabi, where we have GI as an issue for a negotiation. मैं क्यों ये ट्रेस कर रहा हूं? आप लॉ होने के बाद इंप्लीमेंट करने वाली इंपॉर्टेंट, जिसे कहोगे कि ऑफिसर्स हो. दैट्स वाई से कि लॉयर्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट. तो आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, एग्जीक्यूट करने वाले हो. लेकिन लॉ आने के बाद करोगे ना, तो लॉ अगर अपनी फेवर में ही लाया गया, अच्छा वाला देश के फेवर में लाया गया, तो क्या होगा? I request you to read Article 21, 22, 23 of the TRIPS agreement, where you will see there is a already provision by the European Union about the multilateral register for the wine and spirit. मतलब
चलो मैं यहाँ से कुछ सवाल पूछ लेता हूँ ताकि सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। आप लोगों को शैंपेन पता है? ऐसा कोई है जिसको शैंपेन नहीं पता है? ऐसा कोई है जिसको स्कॉच विस्की नहीं पता है? ये बहुत सही बात है कि शैंपेन और स्कॉच विस्की का नाम सुनते ही हमारे दोस्त एक दूसरे के दोस्तों की तरफ देखने लगे। कितने लोगों को सूर पता है? वेरी गुड, एटलीस्ट 1%। सूर, सूर इज नॉट दैट सूर, सब तो सूर वाला सूर नहीं है। वेरी गुड, यू आर फ्रॉम उत्तराखंड? ओके गुड। किन लोगों को छंग पता है? यू आर फ्रॉम लद्दाख, नागपुर। थर्ड, कितने लोगों को जाओ बिशी पता है? ये भारत की दुर्भाग्य है, हमारी धरोहर हमें पता नहीं, यहां से ही जीआई का कनेक्ट शुरू होता है। सूर इज वन ऑफ द बेस्ट अल्कोहलिक, एक्चुअली अल्कोहलिक ये शब्द लोगों को अलग सा लगता है, बट देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड जॉनसरी देयर इन उत्तराखंड। 26 प्लस हर्ब्स जो हिमालय में आती है, उससे ये वस्तु, ये चीज, ये अल्कोहलिक बेवरेज बनती है, उसको सूर कहते हैं। और छंग फ्रॉम लद्दाख, देन जाओ घिशी, जाओ बिडवी, माइब्या। आई वर्क फॉर ऑल दीज GIs, दे आर फ्रॉम बोडोलैंड, फ्रॉम आसाम। राइस बियर, करेक्ट। तो आप लोगों को शैंपेन पता है, आप लोगों को स्कॉच विस्की पता है, लेकिन सूर, जिसके ऊपर चरक संहिता में रेफरेंसेस है संस्कृत से लेके, आई एम गोइंग टू chat that particularly Sanskrit shloka very soon. But before that, since we have touched the subject of the WTO, and my intention is how they promoted and where we are, there is an issue at WTO right now on GI. They have exploited their GI in an excellent manner कि भारत का क्या, दुनिया का बच्चा शैंपेन पता चले उसको। शैंपेन इज फ्रॉम फ्रांस, छोटे से गांव का लीकर, सेलिब्रेशन ड्रिंक बन गया। और हमारे यहाँ पे भी तेंदुलकर जब वर्ल्ड कप जीतते हैं तो वो सेलिब्रेशन करते हैं शैंपेन से। क्यों ना हम लोग तो दुनिया को ऐसी बढ़िया बात दे सकते हैं कि जो हिमालय के हर्ब्स जिससे बनी हुई चीज दुनिया को दे सकते हैं। सूर, लद्दाख जैसी जगह से आया हुआ छंग, या फिर राइस बियर को देके हम लोग, बट पहले क्या रिकॉग्निशन इन ब्रिटिशर्स लोगों ने ऐसी वाली प्रोडक्ट। आई वो ऑल्सो वर्क, अब अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो वर्क फॉर द महुआ। यू नो महुआ, ये ट्राइबल का है। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू नो अबाउट महुआ? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बातें मैं बताने जा रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड अप्लाइंग लॉ इन अ प्रैक्टिकल मैनर। You people are on the right understanding at academic level, but my question was, what do you know Mahua? And you said the process of making of Mahua. Rightly, I will tell you in law perspective, जो आपको पता नहीं वो आपको जज को बताना है, जज को कन्विंस करना है। वही वाला कंसेप्ट, इफ यू वांटेड टू गेट द जस्टिस इन योर फेवर, आइदर कन्विंस द जज, इफ नॉट देन कंफ्यूज द जज। सो नाउ क्या है, फॉर्चुनेटली आई एम हैप्पी दैट यू पीपल नो द महुआ। आपको सबको याद रहेगा, हमारे पूरी दुनिया में एक बड़ा, जिसे कहोगे
पीरियड सब दुनिया ने देखा था वो है कोरोना का पीरियड। उस वक्त आप सब लोगों ने सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया होगा, करेक्ट? बट हमारे यहाँ पे नेचुरल सैनिटाइजर था, वो है महुआ। जो वहाँ की दाई माँ होती है, डिलीवर पाड़ा बोलते हैं आदिवासी लोग, और वो जब डिलीवरी मतलब वो बर्थ डिलीवरी करने जाती है लेडी का, तो हाथ में महुआ लगा कि ये सैकड़ों साल का ट्रेडिशन है। सो नेचुरल सैनिटाइजर था, लेकिन हम लोगों ने अपना नेशनल सैनिटाइजर कितना प्रमोट किया, हमें ही पता नहीं था। एंड देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इट मे बी सूर, इट मे बी छंग, इट मे बी rice beer from the Assam, that we have to understand, and there you have to say geographical indications. And that should start from you. I'm going to tell you the various facts and figures basically where we are. This is a recent report submitted to the parliament about the IPR review report. You all are requested to read this. And in this report, see the importance in Indian perspective. कि 1% भी आपका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन बढ़ता है तो 6.8% आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है. You know Harry Potter, J.K. Rowling, her story inspiring. She requested United Kingdom 200 pounds, etc., etc. फिर अपना दिमाग लड़ाया, हैरी पॉटर बनाया. आज she is earning more than the Queen Elizabeth. Correct? On basis of the copyright. Correct? तो कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने जनरेट किया होगा? स्कॉच विस्की जितना बनता है उसका 70% स्कॉटलैंड एक्सपोर्ट करता है. शैंपेन जितनी बनती है उससे 90% वो टोटली एक्सपोर्ट करता है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा उनके पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, कितनी मतलब इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के लिए होती है. गॉट इट और नॉट? और हमारे यहाँ पे ये रिव्यू रिपोर्ट 2 साल हुआ है तो भी, इज देयर एनीवन हु रिसीव्ड दिस आईपीआर रिव्यू रिपोर्ट सबमिटेड टू द पार्लियामेंट? वही बातें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. Go beyond your definitions. Got it? Come and discuss the most recent thing happening. Sorry. अरे बाप रे, मेरा तो अभी तो शुरू हुआ है. 10 मिनट कैसे खत्म करें? ओके, चलो फटाफट कर लेते हैं. So this is about the IPR review report. This is out the patent. 14 lakhs in China. अपने देश में 56,000. उसमें से भी 40,000 बाहर से पेटेंट सबमिट है, IBM वगैरह. 16,000 केवल अपने. Where we are? 16,000, 16 लाख, या फिर 16,000, 14,000, 14 लाख. That is where China, this is government reports. 78 lakhs trademark on an average per day. 24,000 per hour. 1,000 trademark चाइना फाइल करता है. हम लोगों का 3.5 लाख पर डे. 1,000. 1:24. जो फाइल करने वाले ये लोग हैं, इनको कितना डीप में पता है ट्रेडमार्क? देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं. GI 5-5 साल में, हम लोग पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं. 22 साल हुए तब भी कुछ ऐसे वैसे 89 तक पहुंच गए हैं. मेरा तो हर जगह पे ये अपॉर्चुनिटी में ढूंढता हूं कि इफ आई ट्रेन वन लॉयर देन आई रिक्वेस्ट हिम टू फाइल एटलीस्ट 50, सो वी विल अचीव द गोल नियर टू चाइना. 11,000 GI है चाइना के, 59,000 है यूरोप के, और हमारे देश के हैं 504. उसमें से भी 150 है फॉरेन के. शैंपेन, स्कॉच विस्की. क्यों? हमारे लॉयर जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं उन तक ये सब्जेक्ट आया ही नहीं है, या फिर आया तो उन्होंने अपना उसको बनाया ही नहीं है.
बाकी प्रॉब्लम्स हैं आपको ध्यान में रखना. आई हैव 2 books विच आई कैन शेयर विथ यू. 80% जॉब तो जाने वाले हैं. और चीन में तो 4 रोबोटिक जज बन गए हैं जो डिसाइड करते हैं मेरिट के ऊपर. सो डू नॉट रिलाई ऑन दैट टिपिकल प्रैक्टिस साइड. और मुझे मेरे गुरु ने एक बहुत बड़ा लाइन, व्हेन आई एंटर इनटू द लीगल फील्ड ही टॉट मी अ वेरी फर्स्ट क्लास लाइन की, गणेश अच्छा प्रोफेशनल बनने से पहला अच्छा इंसान बन. From where you apply your profession to the community's upliftment. I'm going to share you a couple of the interesting story. So this is how the GI got the benefit from the entire world. European Union ने pandemic period में भी 75 बिलियन यूरोस की सेल की थी GI की प्रोडक्ट. उसमें से भी 15 बिलियन यूरोस उन्होंने एक्सपोर्ट से बनाए थे. What I said, champagne, Scotch whiskey, Switch watches, Switch chocolates, etc., etc. Got it or not? So कैसे देश को ये बड़ा बनाता है. 51% उनका वाइन स्पिरिट आप तक उन्होंने पहुंचाया ना, शैंपेन स्कॉच किस विस्की को. तो कितनी उन्होंने उनकी धरोहर को कैसे अलग सा, दैट इज देयर कल्चर बेसिकली. आई सेड अबाउट दी संस्कृत श्लोका वेयर सूर्य इज मेंशन किंतु मध्यम स्वभावेनम यथाम वांदम तथाम स्मृतम अयुक्ति युक्तम योगानाम युक्ति युक्ताम मृतात. बट अल्कोहल इज अ फूड. वो कंजम्पशन अगर आपने एक्सीड किया, इनएप्रोप्रिएट किया तो डिसीज हो जाता. मतलब हमारे पास था, इसका मतलब आज से शुरू सूर को शोधना. दिस इज वॉट आवर, फॉर्चुनेटली आई हैव वर्क on different alcoholic beverage. So likewise you people are from different part of an India. I mentioned about only 7 states, but हर जगह पे ट्राइब प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी है, उनकी एक ट्रेडिशन है. उस ट्रेडिशन को हम लोग GI बना सकते हैं. GI can be granted to 3 categories. Number 1 is agricultural GI. Darjeeling tea got the first GI in 2003. A unique atmosphere, maybe soil, water, etc. that leads to the uniqueness. And then that product can be registered as a GI, that is agriculture GI. So, I work for Mahabaleshwar strawberry, Nashik grapes, beet custard apple. From Nagpur only, nearby Nagpur, there is a product called Bhivapur Mirchi. I work for that. Then Bhandara Chinnor I work. And recently on 21st October, I filed GI application for Alapalli Sagwan from Gadchiroli. जो सागवान राम मंदिर में इस्तेमाल किया गया है, I work for that as. So you just have to think. So that's unique agricultural product. First category. Second, manufactured product or goods that can also get the GI. So your Goa Feni, your textile product called Paithani Sari, Banarasi Sari, Chanderi Sari, Kanchivaram Sari, those are in the category of manufactured goods. And the third one is your natural goods. We have 2 GI registered as a natural. One is Makarana marble from Rajasthan, used there in Tejo Mahal, Taj Mahal and Victoria Palace. उस जमाने में उसको इस्तेमाल किया गया था. Naturally 97% more than calcium carbonate उसमें होता है. वो वाली बातें उसमें naturally आती. I have had an opportunity. Excuse me, volunteer. Excuse me, can you please close the door for me? I have had an opportunity to work for the Ganga Jal, Gomukh Ganga Jal. Naturally 1100 बैक्टीरिया फेज उसमें है जो बैक्टीरिया किल करता है. 28 टाइम्स मोर डिजोल्व ऑक्सीजन उसमें है, नेचुरली है.
पहले 2 जल को मिला हुआ है, कलोन वाटर को मिला है जर्मनी में, हैशटैग को मिला है ऑस्ट्रेलिया में, हमारे यहां पे इतना होने के बाद सो वी वर्क। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंप्लीट कर दो, क्लोज, डिस्टर्ब होता है बस फ्लो में। गंगा जल आपको पता चलना चाहिए, एंड फॉर्चुनेटली वी वर्क फॉर दैट। लाइकवाइज वी केम टू नो देयर इज अ जल फ्रॉम सिक्किम, नेचुरल स्ट्रिंग है, वो बहुत ही मिनरल स्ट्रॉन्ग है, और हमारे यहां पे हमारे कुछ क्रिकेटियर 2-2 हजार रुपए की बोतल लेते हैं, उससे बढ़िया। आई कंपेयर दैट विद गंगा जल। हमारे यहां पे घर घर में गंगा जल रहता था, अब कहां पे है? और उसका पीछे पर्पस था कि डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है, ताकि आखिरी वक्त और ऑक्सीजन ले लो और अपनी लाइफ बढ़ा दो। सो वेयर दैट्स वाई जीआई एट घर घर होगा तो भारत कहां पे जाएगा? जस्ट इमेजिन, गॉट इट और नॉट? सो दैट्स वाई वी हैव टू वर्क। देन रिजल्ट ऑफ फेनी, दैट इज अगेन कैशू फेनी, आपको तो ये पता होगा। फेनी पॉलिसी आ गई है, एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने प्रमोट कर दिया है। As GI came from WTO, we have an opportunity to take our product to the international market. So GI is not only protecting the community, GI is giving you a platform to get the premium price. Yours is an exceptional product. Yours is a unique product. GI is what you people say leading towards a good brand, that is Darjeeling tea. GI is there, get the international market. Fortunately, our Darjeeling also reach at 60 countries. So can that be happen to the other products? Not only Darjeeling or Basmati, but we have in Maharashtra itself, I work for 4 different non-Basmati aromatic rice. When I mention about the Bhandara Chindur, likewise you can see about it. See the comparison. टकीला कितने में है, शैंपेन कितने में है, स्कॉच विस्की कितने में है, और हमारा सूर कितने में है? 4000, उससे कई 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 गुना क्वालिटी वाइज हमारा सूर है, लेकिन प्राइस 50 रुपीज। सबको वायलिन पता है, बट किसी को यह पता है क्या सेरजा है? इज देयर एनी फ्रॉम आसाम? इज देयर एनी फ्रॉम बोडोलैंड? सेरजा ये वायलिन के पहले, या गुड, या करेक्ट, yes, I only applied for this. I work for all these 21 GIs from Bodoland. So सेरजा आप सुनोगे ना, इसको भूल जाओगे वो गोरों का वायलिन, इतना मधुर संगीत आता है। This is our culture. This is our heritage. This is our basically Erie silk. Have you heard about the Erie silk, Indie silk? I only work for this. I only registered this. Recently on 1st December it was accepted. इसका जो सिल्क वॉर्म है वो मरता नहीं है। तो दुनिया को हम लोग क्या देख सकते हैं? अहिंसा। And I must tell you, you all have to study SDG, Sustainable Development Goals of United Nations. Our products are perfectly fit into that category where we are nature loving people. हम लोग ऑलरेडी बढ़िया है, दुनिया को बोल सकते हैं, और वहां के उनको इंसिस्ट कर सकते हैं कि ले लो भाई, ले लो। बट बिफोर दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट इट लीगली। उनको राइट देने का काम किसका है? किसका है? किसका है? तो डिसाइड करो, 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 5000 GI भारत के कैसे बन जाए। गॉट इट? तो वो तब पता चलेगा। ये सब मैंने किया फॉर्चुनेटली, सब अलग अलग पैटर्न ही हो, जिमरा हो, अरनाई हो,
ऑल फूड प्रोडक्ट्स हो, ऑनला, गौका गाकी, अरे अपने देश पता चलेगा ये नाम क्या है। ये नाफाम फर्मेंटेड फिश है, विदाउट एनी प्रिजर्वेशन यू कैन कीप इट फॉर 3 years नेचुरली। वहां का एक बाम्बू में लगते हैं प्रोसेस करके, जरूरत ही नहीं टेक्निक की। गॉट इट और नॉट? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू थिंक अबाउट। वी हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग दैट्स अ गिफ्ट कल्चर दुनिया में। वो डायरेक्टर जनरल थे WTO के, उनके सर के भी ऊपर हम लोगों ने पुडेरी पगड़ी पहना है। यू विल फाइंड द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, वो जो लेडी है अपने देश के, जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है उसी में कांस्टेंट, एक भी बार आप उनको नहीं देखोगे कि विदाउट उनके ट्रेडिशनल ड्रेस से। अफ्रीकन कंट्रीज से बिलिंग, और हम लोग सूट बूट दिस दैट में जाते हैं। अगर आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करोगे, कल्चर आपको प्रोटेक्ट करेगा, एंड देयर यू विल सी द कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप बिगेन। एंड दिस इज हाउ वी प्रमोटेड। जगह जगह पे हम लोग कर रहे हैं प्रयास, और आज इसी के लिए यहां पे आए हैं। वी ऑल्सो टुक, एक बात है, कुछ अलग सी प्रैक्टिस हमारे यहां पे ब्रिटिशर लोगों ने दी है कि कोर्ट लॉयर्स को प्रैक्टिस केवल कोर्ट में करनी है, वहीं पे अपना काला उनका कोट पहन के, बट फॉर सर्टन एरिया, फॉर सर्टन लॉ यू विल हैव टू गो आउट ऑफ कोर्ट। हम लोग गांव गांव में फार्मर्स के पास, मैं भी लॉयर हूं, 2001 का पास आउट हूं, 2002 में मैंने LLM UK से किया हुआ है, मैं भी मतलब IIT में लेक्चर देता हूं वगैरह वगैरह सब कुछ है। लेकिन व्हेन यू, कल नासिक में ऐसे ही मैं GI को प्रमोट कर रहा था, वहां पे यूथ फेस्टिवल चल रहा है, वहां पे इंडियन GI लगाया हुआ है। तो यू विल हैव टू गो, आपको कोर्ट्स के बाहर जाना है। आज की तारीख में आपको एनर्जी चाहिए तो ब्लेसिंग चाहिए, वो कम्युनिटी की तरफ से मिले। गॉट इट और नॉट? दैट वे यू हैव टू थिंक कि कोर्ट के बाहर जाओ। रिसर्च मजा आता है, GI में हिस्ट्री लगती है, ज्योग्राफी लगती है, साइंस लगता है। If I ask you what is important of the Bhandara Chinnor rice, some of you may be from Nagpur, then 2-acetylene propylene, अभी पता चलेगा कि ये साइंस है तो मेरे नहीं, आपको उसी के माध्यम से ज्ञान बढ़ेगा। Got it or not? So that's way you'll have to work. Now coming to the success stories, we have registered. आप जैसे बच्चों को ही प्रॉपरली, लॉ के बच्चों को ही लेके हम लोगों ने 2002 में ये मिशन शुरू किया था, और पहले तो ये सब्जेक्ट था ही नहीं। 2001 में लॉ आ गया था, मैं वहां से भारत में आ गया था और हम लोगों ने शुरुआत की थी। वी स्टार्टेड लाइक टेकिंग सच काइंड ऑफ लेक्चर्स एंड सम गुड, आपके जैसे ही बच्चे आगे आए, और 2007 में हम लोगों ने पहला GI रजिस्टर्ड किया था, पुनेरी पगड़ी, विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, फ्रॉम लॉ स्टूडेंट्स ओनली। उसी वक्त हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे को रिक्वेस्ट की, प्लीज रिप्लेस द कॉन्वोकेशन हुड विद द पुनेरी पगड़ी, जो ब्रिटिशर्स लोगों की है ना आपकी हुड। एंड फ्रॉम 2020 दे स्टार्टेड रिप्लेसिंग कॉन्वोकेशन हुड विद द पुनेरी पगड़ी। कोई राजस्थान से होंगे तो साफा है, कोई हिमाचल से होंगे तो हिमाचल टोपी है। क्यों ये अंग्रेजों की काली टोपी हम लोग पहने हैं? और इन अदर वर्ड्स, लेट मी टेल यू नाउ, टुडेज टॉपिक इज विद रिस्पेक्ट टू द कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप है। इन अदर वर्ड्स, पुणे यूनिवर्सिटी 3 डिस्ट्रिक्ट से कवर है, पुणे, नासिक, अहमदनगर। 5 लाख मिनिमम बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। जस्ट इमेजिन कि 5 लाख बच्चों में से इवन 10% बच्चों ने भी पुनेरी पगड़ी परचेस करना शुरू किया, तो कितना एम्प्लॉयमेंट आर्टिसंस लोगों के लिए खड़ा होगा, कितनी रेवेन्यू जनरेशन होगी। और कल अगर 5 लाख बच्चों ने शुरू किया तो आने दो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने दो, मशीन लर्निंग को आने दो, इंटरनेट ऑन थिंग्स को आने दो।
हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारा कल्चर हमें बचाएगा. Got it or not? That way you have to think about the GI. So this is what had happened with this. Some of you may be from Sangli. 250 रुपया भी नहीं मिलता था. Now 1000 rupees. मेरा इंटेंशन पैसे बढ़ाना नहीं है. मेरा इंटेंशन राइट. आप देते हो ना नाइकी के शूज को तो 2000 रुपए देते होगे ना. क्यों देते हैं? ब्रांड 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 छोड़ दो. उसको कहते हैं क्वालिटी 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 क्वालिटी. There is no definition of brand. There is no definition of quality. That is defined by ourselves. By mouth to mouth. अरे ये बहुत बढ़िया. अरे फिर ले लूंगा चलो. वो राइट मार्क निकाल दो. 200 रुपया भी नहीं देंगे आप. So that is what the GI is a quality tag. I request you, some of you, if अगर आप मराठी पढ़ते हो तो मैंने परसों ही बिल्कुल एक दिन पहले मेरा आर्टिकल आया हुआ है ट्रेड डेफिसिट. भारत की 9 आउट ऑफ 10 कंट्रीज के साथ डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है. मराठी सकाल में आया हुआ है. इफ यू क्लिक गूगल में भी जाओगे ना तो मेरे कम से कम जैसे बताएं 300 आर्टिकल है, कुछ मराठी को इंग्लिश में. 89 वीडियोस है. आईआईटी के लेक्चर्स है हमारे वहां पे. जानबूझ के हम लोग प्रमोट कर रहे हैं. वी वांटेड टू सी द डेवलप इंडिया. केवल सपनों में नहीं देखना है हमें, एक्चुअल देखना है. एंड आई एम कंपेयरिंग विथ चाइना एंड नॉट. वो नेबर है, दूसरे नेबर भी है हमारे पास, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी एनर्जी हमारे छोटे नेबर के साथ ही हम लोग कंपैरिजन करने में जाती है. दैट इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्रबल विथ बीइंग अ रैट रेस. इवन यू वन द रेस यू विल बी द रैट. तो किसके साथ कंपेयर करना है? तो दैट्स व्हाई आई कंपेयर विथ पेटेंट, कंपेयर विथ ट्रेडमार्क, कंपेयरिंग विथ जीआई. और वो तो बाद में आए हुए थे. आई वॉज देयर इन 2005 इन हांगकांग मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस व्हेन चाइना बिकम अ मेंबर ऑफ द WTO एंड हाउ फास्ट दे टुक इट. हम लोग तो फाउंडर थे, कहां पे रह गए? अगर हम लोग उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं तो हमें उसको छोड़ देना है. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टडी WTO. अगला महीना आपको निगोशिएशन के लिए कौन सा पॉइंट है? फोकस ऑन GI, focus on trade deficit, focus on contribution they have made, and then there you will see कि लॉ आने के पहले ही आपको लॉ पता होगा, क्योंकि एग्रीमेंट बनेगा, डिक्लेरेशन होगा, इंप्लीमेंट आप ही करोगे. उससे पहले ही होगा तो आपका फाउंडेशन पक्का होगा. Got it? Got it? So that's why you can think. So here, Jalgaon banana, I registered. Now exporting to the many countries. आज भी वहां पे मुझे आ गया सत खत्म अभी बटा फटाफट हो गया. Conclude the session. So these are the various success stories. Jalgaon banana is now exported to the many countries. Jahanu, Golwar, चीकू. यहाँ पे GI मिलने के बाद कुछ लोगों ने शुरुआत की चीकू पाउडर बनाना, चीकू चिप्स बनाना. एक महिला ने वहां पे चीकू पार्लर बना दिया और चीकू वाइन भी बेचना शुरू किया. सो कितने स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी मिली? गॉट इट? GI कितने लोगों को बेनिफिट दे सकता है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आपको सोचना है. ऐसी काफी सेशन काफी है. वैसे ही ये चीकू, केशर मैंगो, टर्मरिक, there are actually 89. Basically I have all these success stories. Mahabaleshwar strawberry, 53 families remigrated. अगर हमारी गांव सक्षम होगा तो देश सक्षम होगा. और गांव सक्षम कब होगा? करेक्ट. सो दैट वे ये राइस जो डबल प्राइज लेके गया है, दिस इज व्हाट द रिकॉग्निशन इन 2015, 2016 वगैरह. वो तो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट. यू मे नॉट बी अ सोल्जर. आपको सोल्जर बनना है लेकिन सोल्जर नहीं बन पाए तो मैंने अपनी तरफ से शुरुआत की थिंक ग्लोबली, एक्ट इंडिविजुअल पॉलिसी के ऊपर. हाउ आई कैन प्रोटेक्ट माई कंट्रीज बॉर्डर एंड वी बिगेन जम्मू कश्मीर एंड ऑल. दिस इज हाउ वी वर्क फॉर द बॉर्डर्स टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. जम्मू कश्मीर, वहां से डोडा मशरूम से लेके वेस्ट बंगाल का सुंदरबन हनी तक हम लोगों ने, अभी ये कोई चुरा के नहीं लेके जाएगा. इन निगेटिव सेंस आप स्टडी करो. टर्मरिक केस, हाउ US took it. बासमती केस, नीम केस, रिसेंटली वाटरमेलन,
इंडियन वाटरमेलन एक्सट्रैक्शन चाइना ने यूरोप में पेटेंट ले लिया उसके लिए। हम लोग ऐसे ही करेंगे, हमारे पैसे बाहर जाए, हमारी धरोहर बाहर जाए। अगर वो नहीं चाहिए तो हमें अपनी बॉर्डर के अंदर उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट वी बिगेन एज अ लॉयर, एज अ लीगल प्रोफेशनल, एज you can say about this, and then we began. This is out. We have had an opportunity to contribute for the India's border. This is how I have had an opportunity to protect the different districts. Unique product from Maharashtra. Fortunately, work for the 51. But this is a small. I know this is a good, but good is enemy of great, and that's why we are leading toward the great mission. With this, thank you very much for your patience, hearing. मुझे पता है सेशन थोड़ा फास्ट लेना पड़ा लास्ट में क्योंकि काफ़ी सेशन होने वाले हैं, बट यू कैन क्लिक ऑन गूगल, यूट्यूब में भी जाइएगा, 2-2 घंटे के सेशन है काफ़ी। मेरे गणेश हिंगमिरे नाम डालोगे तो भी मिलेगा, उसमें सक्सेस स्टोरी है, कम से कम 15 सक्सेस स्टोरी हम लोगों ने डिटेल में लिखी है कि नासिक ग्रेप की यूनिकनेस क्या है, जीआई मिलने के बाद क्या हुआ, डिटेल में। अभी यहाँ पे कंसिडरिंग द टाइम वी हैव जस्ट समराइज इट, बट दो स्टोरीज अवेयरनेस आप उसको बाकी की तरफ लेके जाओ। इवन वी विल इंक्लूडेड हाउ टू गेट द जीआई, व्हाट इज द प्रोसेस टू बी फॉलो, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। सो आप गूगलाचार्य को पूछोगे तो आराम से वो आर्टिकल देगा, पोजीशन पेपर देगा, यूट्यूब चैनल की वीडियोस भी देगा। यहाँ पे समय कम मिला, बट thanks to Google, that is accessible to you very well. Thank you very much.